Good morning student. Today I will teach you physical education unit 7. तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है. द रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल एट अ जॉइंट और द फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड्स upon a number of factors. There are some of the factors which are not trainable, but some factors are trainable to an extent. The various factors which determine the flexibility are described below. Muscle strength. The muscle should have a minimum level of strength to make the movement possible, especially against gravity or external force. In sprint sports, the legs of knees cannot be lifted to the required height or angle if the related muscle abdominal muscles are weak. In fact, weak muscles can become a limiting factor for achieving higher range of movement. Muscle strength is highly trainable and therefore can enhance flexibility of a person. Joint structure. There are various types of joints in human body. Some of the joints intrinsically have a greater range of motion than others. For example, the ball and socket joint of the shoulder has the greatest range of motion in comparison to the knee joint. लचीलापन जो होता है हमारी बॉडी में, जो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन. लचीलेपन का निर्धारण करने वाले शारीरिक कारक एक संयुक्त या लचीलेपन पर संभव आंदोलन की सीमा कई कारकों पर निर्भर करती है. कुछ ऐसे कारक हैं जो प्रशिक्षित नहीं हैं, लेकिन कुछ कारक एक हद तक प्रशिक्षित हैं. लचीलापन निर्धारित करने वाले विभिन्न कारक नीचे मतलब आपको एक्सप्लेन में समझाए जाएंगे. मांसपेशियों की ताकत. गुरुत्वाकर्षण या बाहरी बल के खिलाफ आंदोलन को विशेष रूप से संभव बनाने के लिए मांसपेशियों में न्यूनतम स्तर की ताकत होनी चाहिए. स्प्रिंट खेल में संबंधित मांसपेशियों, पेट की मांसपेशियां कमज़ोर होने पर पैरों या घुटनों को आवश्यक ऊंचाई या कोण तक नहीं उठाया जा सकता है. वास्तव में कमज़ोर मांसपेशियां आंदोलन की उच्च श्रेणी प्राप्त करने के लिए एक सीमित कारक बन सकती है. मांसपेशियों की शक्ति अत्यधिक प्रशिक्षित है और इसलिए किसी व्यक्ति के लचीलेपन को बढ़ा सकती है. संयुक्त संरचना. मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के जोड़ होते हैं. आंतरिक रूप से जोड़ों में से कुछ में दूसरों की तुलना में गति की एक बड़ी सीमा होती है. उदाहरण के लिए कंधे की गेंद और सॉकेट संयुक्त में घुटने के जोड़ की तुलना में गति की सबसे बड़ी सीमा होती है, जो लचीलापन होता है. उसके बाद हमारा आता है effects of exercise on cardiorespiratory system. After doing exercise for a long time, certain adaptations take place in our cardiorespiratory system. The various effects of exercise are stated below. Increases in the size of heart. When we perform regular exercise, the muscles of the heart increase in size and strength. In fact, the left ventricle adapts to the greatest extent. The heart walls grow stronger and thicker. Recent studies show that the myocardial wall thickness also increases. Decreases in resting heart rate. Regular exercise decreases the resting heart rate. If a 10-week training program is given to an individual whose initial resting heart rate in 72 beats per minute, after the training time, his resting heart rate may be reduced up to 10 beats per minute. After regular exercise, the heart finally becomes more deficient. It does not require to beat so quickly to supply blood of the body at rest. It has been noted that highly conditioned athletes can have their resting heart rates in the 30 सेकेंड. इसका मतलब है जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उस पर एक अभ्यास के परिणाम से पता चला है कि लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद हमारे कार्डियो श्वसन प्रणाली में कुछ अनुकूलन होते हैं. अभ्यास के लिए प्रभाव नीचे दिए गए हैं. दिल के आकार में वृद्धि. जब हम नियमित व्यायाम करते हैं तो हृदय की मांसपेशियों का आकार और शक्ति बढ़ जाती है. वास्तव में बाएं वेंट्रिकल सबसे बड़ी सीमा पर एडेप्ट्स. हृदय की दीवारें मजबूत और मोटी होती है.
हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि मायोकार्डियल दीवार की मोटाई भी बढ़ जाती है। आराम करने की हृदय गति में कमी। नियमित व्यायाम से हृदय की आराम दर घट जाती है। यदि एक 10 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी शुरुआती आराम की हृदय गति 72 बीट प्रति मिनट है, तो इस प्रशिक्षण समय के बाद उसकी आराम करने की हृदय गति 10 बीट प्रति मिनट तक कम हो सकती है। नियमित व्यायाम के बाद अंत में दिल अधिक कुशल हो जाता है। आराम से शरीर को रक्त की आपूर्ति करने के लिए इसे इतनी जल्दी हरा करने की आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान दिया गया है कि अत्यधिक वातानुकूलित एथलीटों की 30 के दशक में उनकी आराम दिल की दर हो सकती है, जो स्ट्रोक को कम करती है। उसके बाद है एज एंड जेंडर। It is a well-known fact that flexibility decreases with the advancement of age. However, a human body is trainable. Flexibility can be enhanced with the help of training, as strength and endurance are enhanced. Gender also determines flexibility. Females tend to be more flexible than males. Stretchability of muscles. The stretchability of the muscles is also a factor in limiting the range of movements. For making any movement at a joint, the muscles must contract to execute the movement. If muscles are not regularly stressed, they tend to get shorter and finally restrict the range of movements possible at a joint. The stretchability of muscles is trainable to a certain extent. Therefore, it can be said that stretchability of muscles can determine the flexibility to some degree. Internal environment. Internal environment of the athlete influences the flexibility. For example, 10 minutes in a warm bath increase body temperature and flexibility, whereas 10 minutes staying outside in 10 degrees Celsius reduce body temperature and flexibility. Previous injury. Injuries to connective tissue and muscle can lead to thickening or fibrosing of the affected area. Fibrosed tissue are less elastic and can lead to limb shortening and ultimately lead to reduced flexibility. तो इसका मतलब है आयु और लिंग जो होते हैं, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि उम्र के बढ़ने के साथ लचीलापन कम होता है। हालांकि मानव शरीर प्रशिक्षित है, लचीलापन बढ़ाया जा सकता है। प्रशिक्षण की सहायता और ताकत और धीरज बढ़ाया जाता है। लिंग लचीलेपन की निर्धारित करता है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक लचीली होती हैं। मसल्स जो होती है, रिचेबिलिटी मांसपेशियों का स्ट्रेचेबिलिटी भी मूवमेंट्स का कारक है। एक संयुक्त में कोई भी आंदोलन करने के लिए मांसपेशियों को आंदोलन को निष्पादित करने के लिए अनुबंध करना चाहिए। यदि मांसपेशियों को नियमित रूप से बढ़ाया नहीं जाता है तो वे छोटी हो जाती हैं और अंत में एक संयुक्त पर संभव आंदोलनों की सीमा को प्रतिबंधित करती है। मांसपेशियों की स्ट्रेचेबिलिटी एक निश्चित सीमा पर प्रशिक्षित होती है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि मांसपेशियों की स्ट्रेचेबिलिटी कुछ हद तक लचीलेपन को निर्धारित कर सकती है। आंतरिक वातावरण। एथलीट का आंतरिक वातावरण लचीलेपन को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए गर्म स्नान में 10 मिनट शरीर के तापमान और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए, जबकि 10 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट बाहर रहने से शरीर का तापमान और लचीलापन कम हो जाता है। पिछला चोट। संयोजी ऊतकों और मांसपेशियों को चोट लगने से प्रभावित क्षेत्र पर गाढ़ा या फाइब्रोसिंग हो सकता है। रेशेदार ऊतक कम लचीलेदार होते हैं और यह अंग को छोटा कर सकते हैं और अंत में कम लचीलेपन को जन्म दे सकते हैं।